Hello everyone, welcome to Tarkashastra. I'm Aditya and in this video we are going to review the college Symbiosis Institute of Business Management governed by Symbiosis International University, so well known as SIBM. This college has four campuses across India: Pune, Bangalore, Hyderabad and Nagpur. We are going to discuss about all the campuses, their intakes as usual. हमारा क्या एजेंडा रहता है? Their courses, intake, expenses, कट ऑफ तो शायद हम लोग नहीं डिस्कस कर पाए, but eligibility and admission process, then batch profile and placement scenario. So let us directly go to their website for further details. So this is the SIBM Pune ka website. They have maintained their separate website for all the campuses just like NMIMS. Okay, so NMIMS and SIBM are almost at the similar level, are almost at par. Also the exams as well. SNAP is taken by almost 30,000 students across India, and NMAT is taken by almost 40 to 45,000 students across India. Symbiosis also has multiple campuses across India, and MIMS also have multiple campuses across India, right? दोनों का ROI भी ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल पे जाएगा. 20-22 लाख का पैकेज है एंड 18 से 20 लाख का एवरेज, सॉरी 20-22 लाख का फीस है एंड 18 से 20 लाख का पैकेज है. So if we discuss about SIBM Pune, it is located in Lavasa, a very well known location for various reasons as well as the scenic beauty. Okay, बहुत अच्छा कैंपस है इनका. The flagship program is MBA, 2 year flagship program. They have multiple programs. अगर आप यहाँ पे देखोगे तो MBA, Innovation and Entrepreneurship, then Leadership Strategy. फिर एग्जीक्यूटिव वगैरह के बारे में हम लोग नहीं बात करने वाले हैं. We are only going to discuss about their residential 2 year programs. So the first one flagship program is 2 year full-time MBA. जब से ये कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ है तब से ये प्रोग्राम चल रहा है विथ मल्टीपल स्पेशलाइजेशन लाइक मार्केटिंग, HR, फाइनेंस एंड ऑपरेशंस. अगर मैं अभी आप यहाँ पे जाके प्रोग्राम स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में देख सकते हो. ठीक है, तो प्रोग्राम स्ट्रक्चर में इनका दिया जाता है कि क्रेडिट पॉइंट्स कैसे है, तो सब्जेक्ट्स कौन से पढ़ाई जाएंगी एंड सो ऑन. तो आप ये सब देख सकते हो. आई विल डायरेक्टली गो टू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. ठीक है, इनटेक वगैरह भी सब दिया है तो हम लोग सब डिस्कस करेंगे अभी धीरे धीरे धीरे. So if I go to eligibility criteria, the candidate should be graduate from any recognized university or institution of national importance with a minimum of 50% marks. So कभी भी देखो कि जो अच्छे colleges होते हैं, they are obviously looking for a student from good reputed graduation B school. Okay, अगर वो नहीं है आपका या यूनिवर्सिटी भी नहीं रेप्यूटेड, बहुत अच्छी रेप्यूटेड नहीं है, तो आपको स्नैप में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा. स्नैप इज कंपेरेटिवली इजियर एग्जाम कंपेयर टू कैट. सो मिनिमम 40% है, 45% हमेशा की तरह जो अदर कॉलेजेस का है वही ये कॉलेजेस भी फॉलो करते हैं. सो इनटेक अगर देखोगे तो 180 स्टूडेंट्स का इनटेक है फॉर द फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ इंडिया. ओके, विथ द रिजर्वेशन एज पर गिवन परसेंटेज. SC 50%, ST 7.5% and different level 3%. And over and above these 180 seats, they have two reserved seats for Kashmiri migrants and 15% of the seats for Kashmiri international students. Okay, then how to apply. This is a very important point कि आप यहाँ पे अप्लाई कैसे करें. स्टेक होल्डर फीडबैक, फिर एडमिशन कैलेंडर में तो अभी ये साल का कैलेंडर आपको कुछ काम का नहीं रहेगा बिकॉज विल बी रिक्वायरिंग नेक्स्ट ईयर्स करें. बट हाउ टू अप्लाई, दिस रिमेन्स सेम थ्रू आउट द ईयर्स. You will have to apply for SNAP test. You will have to appear for SNAP test because this is the only score which they accept, specifically SIBM. ठीक है, they do not accept CAT, ZAT, any other exam का score, they accept only SNAP का score. उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस है उनका कि the candidate will be called for the selection process which consists of group activity or group exercise and personal interview along with written ability test. So कोविड के सिनेरियो में भी उन्होंने यही एक्टिविटीज कंडक्ट करी. इसके डेट्स वगैरह सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे एडमिशन कैलेंडर. सो अपार्ट फ्रॉम स्नैप टेस्ट क्या क्या है? ग्रुप एक्सरसाइज, पर्सनल इंटरव्यू एंड रिटन एबिलिटी टेस्ट. रिटन एबिलिटी टेस्ट के लिए क्या करना है? आपको ऑन डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ते रहो ताकि आपका थॉट प्रोसेस डेवलप होता रहे. पर्सनल इंटरव्यू के लिए वही काम में आएगा एंड ग्रुप एक्सरसाइज के लिए आपकी पर्सनैलिटी ही आपको राइट. ऐसा नहीं है कि लवासा में जाके आपका अपने आप ग्रुप एक्सरसाइज में परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा. राइट, आपको डेवलप करना पड़ेगा खुद को. देन
if I look at the fee structure for 2021-23 बैच जो recently induct हुआ है कॉलेज में, so the fees for first semester is fees for first year is 6 plus 5 11 lakh 66,000, almost 12 lakhs, and for next second year it is almost 10 lakhs. So including all the expenses, cost of living in and around Pune and everything, your fees or your total expenses will go above 22 lakhs. वो सब डिटेल आपको एक स्निपेट उसका इंस्टाग्राम पे हमारे मिल जाएगा, ठीक है, जहाँ पे हम लोग इनटेक, फीस, एवरेज प्लेसमेंट, एवरेज पैकेज, देन मीडियम पैकेज या हाईएस्ट पैकेज का पोस्ट डालते हैं हर एक कॉलेज के बारे में। सो ये हो गया इसका फीस, राइट। अभी हमें क्या देखना है, बैच प्रोफाइल एंड प्लेसमेंट सिनेरियो। सो प्लेसमेंट सिनेरियो अगर आप SIBM पुणे का देखोगे तो इनके यहाँ पे जो मैंने दो कैंपसेस बोले हैं, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन मैनेजमेंट, तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यहाँ पे तो प्लेसमेंट का सवाल ही नहीं उठता है। वही वो लोग पढ़ा रहे कि आप एंटरप्रेन्योर बनो एंड प्लेसमेंट क्रिएट करो। एंड जो नेक्स्ट प्रोग्राम है इनका, नेक्स्ट प्रोग्राम कौन सा था, leadership strategy. So if we go on this page, you can clearly see that this program is currently paused because of the pandemic. They might resume it into annual year, academic year 2023 or 2024. So जो प्लेसमेंट हम लोग देखने वाले हैं वो MBA फुल टाइम का ही रहेगा, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ स्टूडेंट्स बैच प्रोफाइल में, यहाँ पे सब कुछ मिलेगा आपको। लेट्स गो एट देयर प्लेसमेंट रिपोर्ट्स, प्लेसमेंट रिपोर्ट ऑफ द बैच 2021, जो बैच अभी कोविड में पास आउट हुआ है। यहाँ पे भी उन्होंने बहुत अच्छे प्लेसमेंट रिकॉर्ड मेंटेन करे गए। ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट द एवरेज पैकेज एंड ऑल, सी जस्ट एक मिनट, हाँ, द बैच, दिस इज फॉर द प्लेसमेंट रिकॉर्ड ऑफ द बैच इज पासिंग फर्स्ट आउट इन 2020। ओके, तो ये सब फॉरवर्ड वगैरह हम लोग आप लोग बाद में पढ़ सकते हो। वी आर आई एम मेनली कंसर्न अबाउट द नंबर्स। सो एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में अगर बात करें तो 72% ऑफ द बैच इज फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, मोस्टली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही हो सकते हैं ये लोग। देन 22% ऑफ द बैच इज फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड एंड 6% ऑफ द बैच इज फ्रॉम अदर एकेडमिक बैकग्राउंड्स। जेंडर रेशो बहुत अच्छा मेंटेन किया गया है, 32 एंड 68, 32% फीमेल आर देयर। Work experience wise, zero, almost 40% of the batch has less than 1 year of experience, and 30, 20, 54, 50, almost 60% of the batch, 57 to 58% of the batch has more than 1 year of experience. So 1 to 2 year, 2 to 3 year, and 4 year, more than 3 years. But yeah, so average age is 25 years. So बहुत अच्छे मैच्योर बंदों के साथ आपको MBA करने को मिलेगा, राइट। सेक्टर वाइज एक्सपीरियंस यहाँ पे ब्रेकअप दिया है, एंड एवरेज वर्क एक्सपीरियंस इज ऑलमोस्ट 2 years. सो बहुत अच्छा बैच प्रोफाइल है गाइस, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर योर पर्सनल ग्रोथ। And if I look at the numbers, 192 offers were made, and with the highest package of 30.38 lakhs, average package of 19.56, and median salary of 18. So after giving a after spending almost 22 lakhs with the, and if you are getting out with the brand name of SIBM and median salary of minimum salary of 18 to 16 to 18 lakhs, it is a good deal according to me, right? क्योंकि आज के डेट में अगर आपको इतना अच्छा पैकेज मिल रहा है तो 1-2 साल में आपका सब एक्सपेंसेस निकल जाएगा, राइट। सो दीज आर ऑल द कंपनीज, अदानी, एक्सेंचर एंड ऑल विच पार्टिसिपेटेड इन दिट। देन फाइनेंस का हाईएस्ट, अभी ब्रांच वाइज हाईएस्ट टीसी देखेंगे तो फाइनेंस का 22 LPA था, HR का 30.38 था, SIBM में भी। देन दिस इज सरप्राइजिंग फॉर मी, मुझे लगा था SPM HRD में HR का पैकेज हायर जाएगा। देन मार्केटिंग के लिए भी 30.38, एंड फॉर ऑपरेशंस द हाईएस्ट पैकेज वाज 22, गुड वन। सो दिस इज ऑल अबाउट SIBM MBA program. And if you want to know about the innovation entrepreneurship program, so this is a new program which they have started. तो आप यहाँ पे इनका ओवरव्यू देख सकते हो। आई जस्ट डिस्कस अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड द इनटेक।
So eligibility criteria is as usual, again same रहेगा, with the intake of 60 students. They have started this program with the intake of 60 students, and above intake it is 2 seats for Kashmiri migrants and 15% seats for international students, right? And if you also look at the fees, entrepreneurship innovation entrepreneurship program का fees रहेगा इनका 4.8 plus 4.6 4.5 कितना है 8 9.3 almost, and this is 7, so more than 16 lakhs का expenses in, okay, more than 16 lakhs located in Lavasa. Okay, there are no placement details given for this particular program. Then if I move forward to the next campus, the IT hub of India, Bengaluru, SIBM Bengaluru has flagship program of MBA, then other programs of MBA, quantitative finance, business analytics. We are going to discuss about all the three programs one by one. So overview, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, world class academic environment and so on. Duration is of 2 years, full time, compulsory residential programming, clearly mentioned with 4 major specializations: finance, marketing, operations and HR. Same as SIBM Pune. Then intake अगर देखेंगे हम लोग ये कॉलेज का, so it is same as SIBM Pune, 180, with the same reservation percentage for same reserved seats for SC, ST and differently able, and Kashmiri migrants 2%, 2 seats and 15% for international students. Then program structure, operational pedagogy, ये तो आप देख सकते हो. Eligibility criteria remains same. तो हर कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने की जरूरत नहीं है हमें, हर कॉलेज के लिए भी देखने की जरूरत नहीं. कुछ कुछ IIT के जो MBA डिपार्टमेंट है वहाँ पे हमें सिर्फ देखने की जरूरत पड़ेगी, जैसे IIS में वगैरह भी देखा था, विच आर स्पेसिफिकली फॉर इंजीनियर्स. तो बस वो कुछ कॉलेज है जब उनके फॉर्म्स रिलीज हो गए तो उसके बारे में हम लोग फिर से डिटेल में आपको वीडियो में बताने वाले हैं. हाउ टू अप्लाई द एडमिशन प्रोसेस remains same for all the SIBM campuses, so we are going to skip this step going further. सिलेक्शन प्रोसीजर अगर आपको देखनी है तो वेट्स फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर एडमिशन. तो सब प्रोसेस होने के बाद आपके स्नैप के स्कोर को 50% का वेटेज दिया जाता है. देन नेक्स्ट हाईएस्ट वेटेज इज फॉर योर पर्सनल इंटरव्यूज, 30% का वेटेज. सो आपको स्नैप में बहुत अच्छा स्कोर करना है एंड पर्सनल इंटरव्यू में बहुत अच्छा इंप्रेशन देना है. देन ग्रुप एक्सरसाइज and written ability test also have 20% of the weightage. Okay, admission schedule, international admissions and all, let us keep that aside. Now we will focus only on few important factors going forward about SIBM. So fees है इनका फर्स्ट ईयर का for flagship MBA program it is 10 lakhs and for next year it is 8 lakhs, and cost of living अगर बैंगलोर का टू पकड़े तो ऑलमोस्ट 20 lakhs के अराउंड इनका टोटल एक्सपेंसेस जाने वाला है, राइट. ऑलमोस्ट 20 लाख के अराउंड का टोटल एक्सपेंसेस जाने वाला है. सो अगर ये 20 लाख का एक्सपेंसेस जाने वाला है तो प्लेसमेंट सिनेरियो भी उतना ही अच्छा होना चाहिए. So SIBM बैंगलोर का भी प्लेसमेंट सिनेरियो बहुत अच्छा है गाइस. वी हैव अ लुक एट प्लेसमेंट्स. उसके पहले बैच प्रोफाइल देख लेते हैं. बैच प्रोफाइल बहुत क्यूट सा दिया है, छोटा सा. सी लाइक दिस. The batch which passed out in 2020, 199 students, had 84 female and 115 male. खत्म. शायद बाकी का डिटेल इन्होंने जो है वो प्लेसमेंट रिपोर्ट को किया. डोंट वरी अबाउट दैट. सो अगर हम लोग प्लेसमेंट रिपोर्ट देखें SIBM बैंगलोर का 2021 का इंटरिम प्लेसमेंट नहीं देखना है मुझे, फाइनल प्लेसमेंट ऑफ 2020 बैच, राइट. प्लेसमेंट रिपोर्ट, इंटरिम प्लेसमेंट रिपोर्ट 2021, यहाँ पे क्या दिया है गाइज एक बार देख लेते हैं ताकि इंपॉर्टेंट चीजें छूट ना जाए. 40 operations, curriculum highlight 30, 83 marketing, 64 students, number of students का breakup given है, specialized courses, then math composition, regional diversity. Apart from this educational background, 50% of the batch was from engineering background.
Then gender diversity is 40:60, which is a very good ratio. Then work experience wise अगर हम लोग देखेंगे तो 50 more than 50% of the batch in SIBM Bangalore is fresher. So compared to SIBM Pune, SIBM Bangalore का batch profile थोड़ा skewed है. Okay. Then sector wise companies, pharmaceutical, healthcare, majority companies work from BFSI sector, services, FMCG and retail. And placement highlights, correct. So average CTC इन्होंने 10.6 का दिया है for 2021 बैच. कोविड बैच भी कह सकते हैं इसको, बट median CTC is 11.5. Okay, so ROI guys थोड़ा बुरा बैड एंड पे मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि 20 लाख का एक्सपेंसेस के बाद अगर आपको 10-11 लाख का हर पैकेज मिल रहा है तो इट इज 0.5 का एक्सपेंस, 0.5 का ROI, राइट. हाँ, SIBM का ब्रांड नेम जरूर मिलेगा, बट आपका 3 साल तो वो जो एजुकेशन लोन लिया है वो निकालने नहीं जाएगा. 10-11 लाख का पैकेज तो आपको कम फीस वाले कॉलेजेस भी देते हैं बहुत सारे, जो आगे आगे हमारे पास इसमें आएंगे, जैसे SRCC GBO हो गया, देन दिल्ली में DAC वगैरह है, DBE है, राइट. So these are the placement details of SIBM Bangalore. प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स अगर आप लोग देखोगे तो इन्होंने एवरेज किस तरीके से बढ़ा है ये दिया हुआ है, 10.26 वगैरह वगैरह इन द कोविड बैच एज वेल, एंड दीज आर द समर प्लेसमेंट हाइलाइट्स. ठीक है. देन नाउ इफ आई मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट प्रोग्राम ऑफ SIBM Bangalore, which is quantitative finance. Yes, this is a new program which they have started from the, this was launched during academic year 2020-2021. तो इनका अभी 2021 में जो एडमिशन हुआ रहेगा that was in the second batch. तो इनका प्लेसमेंट डिटेल्स अवेलेबल नहीं रहेगा ऑब्वियसली. फर्स्ट बैच ही नेक्स्ट ईयर पास आउट होगा, राइट. 2 ईयर कंपल्सरी, 2 ईयर फुल टाइम कंपल्सरी रेसिडेंशियल प्रोग्राम. इनटेक अगर देखेंगे तो पहला फर्स्ट ईयर था लास्ट ईयर 2020 का, एंड 2021 इज द सेकंड बैच. इनटेक बहुत कम रहेगा, 30. ठीक, दैट इज अंडरस्टूड. देन एलिजिबिलिटी वही रहने वाला है, हाउ टू अप्लाई का प्रोसेस भी वही रहने वाला है, एडमिशन शेड्यूल भी वही रहने वाला है. फीस अगर हम लोग देखेंगे तो क्वांटिटेटिव फाइनेंस विच इज मेजरली फोकसिंग ऑन फाइनेंस, इसका फीस है इनका 5 + 5 10 + 8 18 लाख का. भाई इनके सब प्रोग्राम्स की फीस 15 लाख के ऊपर ही है, जैसे भी हम पुणे एंड बैंगलोर के, राइट. एंड नो डिटेल प्लेसमेंट रिपोर्ट अवेलेबल होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, राइट. अब भी तो स्टार्ट हुआ है. ठीक है. एंड उसी तरीके से बिजनेस एनालिटिक्स भी अगर हम लोग देखेंगे तो बिजनेस एनालिटिक्स का भी दूसरा ही बैच चल रहा है. पहला बैच अभी तक पास आउट होने का है. दिस कोर्स इज ऑल्सो 2 ईयर फुल टाइम. तो बिजनेस एनालिटिक्स इज अ वेरी गुड कोर्स लुकिंग एट द करंट कंपनी और करंट मार्केट सिचुएशन, राइट. बट क्योंकि ये नया कोर्स है, इसका इंटेक भी कम ही होने वाला है. दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग. यस, 30 का इंटेक है. अगेन द प्रोग्राम स्ट्रक्चर प्रोग्राम वाइज डिपेंड करता है, तो वेरी करता है. तो आप यहाँ पे जाके जो आपका इंटरेस्टेड प्रोग्राम है वहाँ पे आप देख सकते हो डिटेल. ओके, यहाँ पे जाके उन्होंने प्रोग्राम स्ट्रक्चर दिया है कि किस तरीके से कितना फीस है, क्या है, एंड कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाने जाने वाले हैं ये बताया है. देखो, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर, राइट. एलिजिबिलिटी तो हमेशा से वही है, 50% 45% का, एंड यू शुड क्लियर स्नैप एग्जाम. This is all about SIBM Bangalore. Now we will move forward to their next campus in southern India, which is SIBM Hyderabad. हैदराबाद का भी कैंपस इनका बहुत अच्छा है. They have flagship program of MBA, 2 year full time and residential program, 2 year fully residential. All campuses they are focusing on full time residential program because the top B schools believe in the fact that the growth, intellectual growth of a person happens during the interaction with the peers. जितना ज्यादा इंटरेक्शन होगा उतना ज्यादा ग्रोथ होगा, राइट. एलिजिबिलिटी देखो, 50% 45%, सिंपल सिंपल इन्होंने दिया है. इनटेक वगैरह इन्होंने जो दिया है वो हम लोग
देखते हैं नेक्स्ट पेज पे दिया है। academics, अच्छा इंटेक नहीं दिया है क्या? इंटेक इनका है अकॉर्डिंग टू मी 60 का इंटेक है शायद से अभी हैदराबाद का। माइग्रेंट 15% से मोर स्टूडेंट्स का मतलब ओनली, ठीक है। फी स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, इंटेक भी देखेंगे जहाँ पे मिलता है वहाँ पे फी स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखते हैं तब तक, फी स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखते हैं तब तक, सो रिसेंट बैच के लिए उनका फीस है एकेडमिक फीस 6 lakhs per year, and apart from that the complete fees for Indian students is 4.6 and 4.2, almost 9 lakhs for first year and 7 lakhs for second year, so 97 60। एंड हैदराबाद में कॉस्ट ऑफ लिविंग तो 1-2 लाख पकड़ लेंगे, 16 to 18 lakhs के अराउंड टोटल एक्सपेंसेस आने वाला है आपका ऐसा भी हम हैदराबाद में, राइट। प्रोग्राम स्ट्रक्चर, यू कैन हैव अ लुक एट प्रोग्राम स्ट्रक्चर later, then these are the specialization wise details. We have gone through fee structure, now it is very much important to go through their placements. So recruited student file and placement report, okay। हाउ टू अप्लाई एक बार देख लेते हैं गाइस, सेम प्रोसेस होगा, राइट, परफेक्ट, स्नैप एंड करेक्ट। तो अगर हम लोग अभी स्टूडेंट प्रोफाइल देखेंगे इनका, सो प्रोफाइल्स ऑफ बैच, इतना पुराने बैच का प्रोफाइल देखने में कोई मतलब नहीं बनता है। इंस्टेड आई विल गो फॉर द प्लेसमेंट रिपोर्ट, देखिए, हाँ, 6th प्लेसमेंट सीजन 2021, बहुत बढ़िया। सो जो रिसेंट बैच पास आउट हुआ उनका प्लेसमेंट रिपोर्ट है अपने पास, बढ़िया। सो 18 लाख के एक्सपेंसेस के बाद हाईएस्ट सीटीसी ऑफर्ड वाज 12 लाख, 1:1 का भी नहीं, आई एम नॉट, मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ किसी कॉलेज की, बट जो है वो फैक्ट आपके सामने होनी चाहिए, राइट। ब्रांडिंग ऑब्वियसली मिलेगा एंड 2-4 साल बाद ये कॉलेज का नाम तो बढ़ने ही वाला है, ऐसा भी उनका ब्रांडिंग, सिंपल। सो 90% स्टूडेंट्स प्लेस्ड, अप्रोचिंग 100%। Okay, so this is the latest data which we have. 12 LPA finance, 11 lakh marketing, 10 lakh HR, and 9 lakh operations. Okay, then the average placement was IACTC was 12, summer internship, final placements, ठीक है। Top 10% and top 25% of the batch was given, और batch was offered 8.6 lakh का placement। Okay, so average placement में assume कर सकता हूँ 100% batch का जब प्लेसमेंट हो जाएगा तो समवेयर अराउंड 7 to 8 रहना चाहिए, ओके, हाँ, ओके। एवरेज अपॉइंटमेंट 10.5 to 12 lakh, टोटल कंपनी 20 न्यू एसोसिएशन, समर इंटर्नशिप, ओके, ग्रेट। So these are the high placement details of SIBM Hyderabad. And now moving forward to the last campus recently opened in Nagpur, the city located in the heart of India, exact center. Eligibility 50%, 50%, sanction intake 180, okay। Then reservations as per the normal, हाँ, रिजर्वेशन ऐसा भी है नागपुर का, 45 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर द नागपुर डोमिसाइल कैंडिडेट्स। नागपुर डोमिसाइल कैंडिडेट्स मतलब क्या, ये भी इन्होंने दिया है यहाँ पे कहीं, कैंडिडेट्स अपने कैंडिडेट यूनिवर्सिटी 50% मार्क्स कहाँ पे जो भी दिया है इन्होंने। Reservation of candidate for candidate domiciled in Nagpur 25%. Seats are reserved for candidate domiciled in Nagpur. Minimum of Nagpur candidate for admission in PG programs. देखो PG programs Nagpur means who are domiciled in Nagpur for a period of 5 years as on date of commencement and who have graduated from or are appearing for the qualifying examination of Nagpur University before admission to the program. But तो नागपुर यूनिवर्सिटी के कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है गाइस, 45 सीट्स रिजर्व है। सैंक्शन इनटेक 180 का है इनका। उसके बाद हाँ, एडमिशन फीस अगर हम लोग देखते हैं
तो SIBM नागपुर का भी फीस ऑलमोस्ट उसी लाइन पे होना चाहिए. दिस इज द बेसिक एक्सपेक्टेशन. सो अगर हम लोग देखते हैं एडमिशन फीस पर एनम टू बी पेड 7,05,000, 7 लाख फॉर अदर देन नागपुर डोमिसाइल एंड नागपुर डोमिसाइल के लिए 6 लाख. यहाँ पे भी 1 लाख का डिस्काउंट है. एंड दिस इज अमाउंट इन INR फॉर फर्स्ट ईयर. ओके, फर्स्ट ईयर का 7 लाख, तो सेकेंड ईयर का भी ऑलमोस्ट उतना ही रहता है यूजुअली. सो नागपुर का भी कॉस्ट ऑफ लिविंग 1.5 लाख का राउंड रहेगा. तो आपको 15, 7, 7, 14, 15 to 16 लाख का बजट रेडी रखना पड़ेगा टू डू MBA फ्रॉम SIBM नागपुर. ओके, देन प्लेसमेंट रिपोर्ट ऑब्वियसली अवेलेबल नहीं होगा इनका, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट बैच. जो 2020 में बैच पास आउट हुआ है वो उनका फर्स्ट बैच रहेगा. तो उनका प्लेसमेंट अभी भी चल रहा है. द डेटा विल बी अपडेटेड, update data will be put up soon. Placement is still in process. Okay. So far, the highest package offered and accepted by the student is 12 lakhs. Which is still a good number. 15 lakh is में 12 lakh का package मिल रहा है, which is still a good number, right? So this is all about SIBM campuses across India. If you want to know something more about any other college, or if you want to know something more about SIBM specifically, please let us know in the comment section below. Also, do not forget to like and subscribe our channel so that you keep getting the regular updates. Thank you very much.